Okay, good morning. So, as we have discussed so many things in our second last chapter, so now here we comes to explore our last topic, which is about the SQL database in Android. Okay, database plays the most vital role in any software development because the front end shows the front end visualize the content. Okay, we can see the front end content, but uh, whenever you click on something, whenever you press the login button, whenever you add something to your cart, so वो एक्शन परफॉर्म होनी चाहिए. ठीक है, आप लोग ने एक मोबाइल अगर आपको खरीद इफ यू रियली वांट टू बाय वन मोबाइल एंड यू क्लिक ऑन द मोबाइल स्पेसिफिकेशन एंड सपोज यू kinda like it that mobile, then you hit on the add to cart button. Okay, so whenever you click on that button, that mobile is going to be added on your cart. So ये सारी चीजें कैसे परफॉर्म हो रही है? Obviously using the database, and here in the Android application development we can use we are supposed to use the SQL database to do the same kind of thing, right? Okay, so SQLite is an open source relational database. अभी database के बारे में हम लोग डिटेल में बात नहीं करेंगे, as you have already studied one SQL subject, right? Database management system. You are done with the SQL concept. So that is used to perform database operations on Android devices, such as storing. Database मतलब हम लोग data store कर रहे हैं. एक user enter his username and login. So that data is going to be stored on somewhere inside my hard disk, inside my local storage location. Okay, so we can store that data. We are able to manipulate that data. Manipulate matlab changes karna, updating is not nothing about, or retrieving persistent data, or we can fetch the stored data from the database. So it is embedded in Android by default. Okay, so here is the bottom line. या फिर ये आपके यूटी में क्या हो सकता है कि फाइनल एग्जाम में भी क्वेश्चन आ सकता है कि इज एंड्रॉइड एसक्यूएल लाइट डेटाबेस इज द बाय डिफॉल्ट डेटाबेस फॉर एंड्रॉइड और नॉट. ठीक है, ट्रू और फॉल्स ऐसे आ सकता है. सो देर इज नो नीड टू परफॉर्म एनी डेटाबेस सेटअप और एडमिनिस्ट्रेशन टास्क. ओके, इट इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट थिंग, as you do not have to install any exe फाइल. जैसे कि आप लोग ने एसक्यूएल के लिए इंस्टॉल किया था, राइट? जो या फिर टॉमकैट है, अपाचे है, बहुत सारे सर्वर है, आपको वो डाउनलोड करना पड़ता है exe फाइल, और फिर वो कंपैटिबिलिटी के हिसाब से you need to install that software on your computer. But here there is no need to perform any database setup or administration task. Here we are going to see the example of SQLite to store and fetch data. Data is displayed in the log cat. ओके, सो हम लोग यही एग्जांपल देखने वाले, और यहाँ पे जो डेटा डिस्प्लेड होने वाला है, दैट डेटा इन द डिस्प्ले डेटा इन द फॉर्म ऑफ log cat for displaying data on the spinner or list view mode. Okay, so छोड़ दो ये. Okay, the next important thing about SQLite database is SQLite Open Helper. हाँ, SQLite, अभी SQL और लाइट ऐसे नहीं लिखा है उन लोग ने. SQ का जो L है वही यूज किया लाइट में. देखो स्पेलिंग देखो, एंड spelling matters, obviously, because Java is a case sensitive language and you need to implement this class as it is whenever you are implementing your SQL Lite helper class. Okay, so this is the base class which can provide the all functionality, all accessibility inside the SQLite database. Clear? Okay, so इसके बारे में हम लोग बात करेंगे. The class name is SQLite Open Helper. तो ये क्या करेगा? It is used for database creation and version management. So obviously, if I want to use the database operations, so first we have to create that database. So for creation, we can use the same SQLite Open Helper class. Okay, for the creation, and as well as he can provide, ही नहीं बोल सकते हम लोग, it can provide the version management as well for performing any database operation. Like suppose you have to provide the implementation of on create method. Okay, on create से क्या होगा? create होने वाले simply, या फिर and on upgrade method. upgrade मतलब क्या? upgrade हम लोग update करते हैं, मतलब क्या? जो existence database है उसे हम लोग change करते हैं. हाँ, upgrade मतलब जो already है उसे हम लोग modify कर रहे हैं. So that creation and upgradation is basically performed by the
अभी ये अपग्रेडेशन आप लोग को मालूम है, मैं सिर्फ इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि डेटा ऑलरेडी स्टोर है। हाँ, यू कैन नॉट ट्रंकेट द डेटा एंड प्लेस द न्यू डेटा ऑन द सेम प्लेस, ऑन द सेम लोकेशन, ठीक है। इसलिए मैंने ये वो अपग्रेड का मीनिंग बोला, नहीं तो हम लोग को मालूम है नॉर्मल मीनिंग क्या है अपग्रेड का, ठीक है। सो नाउ दीज आर द constructors of SQLite helper class. Okay, so these constructor are basically useful for our constructor की होते हैं, हम लोग ने जावा में पढ़ा है, यानी constructor is the instance of class, instance नहीं, it is the same of it is which have the same name as a class name, और constructor एक ऐसी रेप्लिका जनरेट करने वाला है जो मैं मतलब एक स्पेशल रिटर्न टाइप है वो, सॉरी रिटर्न टाइप नहीं, इट इज अ स्पेशल फंक्शन कंस्ट्रक्टर विच डू नॉट हैव एनी रिटर्न वैल्यू। ये हम लोग ने सब पढ़ा है, ओके, इसके बारे में हम लोग डिटेल में नहीं जाएंगे। वी आर करंटली फोकसिंग ऑन द कंस्ट्रक्टर्स ऑफ एसक्यूएल लाइट ओपन हेल्पर। ओके, उसके कंस्ट्रक्टर कौन से? सो यहाँ पे देखो दो कंस्ट्रक्टर है, फर्स्ट इज एसक्यूएल लाइट ओपन हेल्पर एंड दीज आर द attributes of first constructor and same as the these are the attributes of second constructor. So first constructor does what? It does simply creates an object for creating, opening and managing the database. एकदम आसान भाषा में बोला जाए तो काय करतो, फक्त एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करतो, हा, आणि त्याच्याने काय होणार आहे, आपण क्रिएट करू शकतो काहीतरी, आपण ती फाईल ओपन करू शकतो डेटाबेस वाली, आणि आपण मॅनेज करू शकतो, ठीक है। एंड दीज आर द एट्रीब्यूट्स लाइक कॉन्टेक्स्ट है एक एट्रीब्यूट जिसका छोटा वाला कॉन्टेक्स्ट क्या बोल सकते हैं हम लोग उसे, पैरामीटर है, वेरिएबल है, ओके। उसके बाद स्ट्रिंग है, उसका नाम, हाँ, एसक्यूएल डेटाबेस, कर्सर फैक्ट्री एंड इंट उसका वर्जन, ओके। एंड द सेकेंड कंस्ट्रक्टर डज व्हाट? इट डज creates an object for creating, opening and managing the database. It specifies the error handler. हा पण सेम त्यासारखंच जसं आधी केलं होतं, सेम त्यासारखंच ऍज इट इज ह्याचं पण फंक्शन आहे, फक्त द ओनली डिफरन्स इज दॅट इट कॅन स्पेसिफाईज द एरर हँडलर। मतलब या इकडे आपण जर एरर आले तर एरर हँडल करायला इकडे एक वेगळी स्ट्रॅटेजी आहे याच्यामध्ये, दॅट्स इट, द ओनली डिफरन्स बिटवीन फर्स्ट कन्स्ट्रक्टर अँड सेकंड कन्स्ट्रक्टर, क्लिअर? ओके, देन द मेथड्स ऑफ SQLite ओपन हेल्पर, हे काय होते, हे कन्स्ट्रक्टर होते, आता आपण मेथड बघूया, ठीक आहे। So my first method is public abstract void on create method, okay, public abstract void on upgrade method, public synchronize void close method and public void on downgrade method. So ये on create, on upgrade, close and on downgrade, these are the four methods. Now अभी ये public return type है, abstract उसका और सपोर्टिव कुछ सिनेरियो रहेगा, void पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर, void रिटर्न टाइप, ये आप लोग को मालूम है, ठीक है। एंड दीज आर द एट्रीब्यूट्स, जैसे कि इसका SQLite डेटाबेस है, डेटाबेस के एट्रीब्यूट में कॉल करने वालों। सिमिलरली हियर along with the database I can call integer वर्जन, ओल्ड वर्जन एंड न्यू वर्जन, क्योंकि अपडेट करते टाइम मुझे क्या चाहिए, ओल्ड वर्जन एंड न्यू वर्जन। उसके बाद ये तो क्लोज करते टाइम मुझे कुछ टारगेट नहीं करना है, आई एम सिंपली क्लोजिंग दैट ऑब्जेक्ट फाइल। एंड हियर इज also I'm calling whenever I'm downgrading मतलब क्या, downgrade is it is the opposite position of upgrade, means in the upgrade scenario we update the system from Windows 7 to Windows 10, ठीक है, ये अपडेशन है। and in the downgrade scenario we degrade the system from Windows 10 to Windows 7, मतलब एकदम easy है, मैं उल्टी प्रोसेस कर रहा हूँ, ओके। Then the next is, अभी हम लोग ने we are done with the constructor in SQLite database. Then हम लोग ने क्या देखा, methods देखे। Now the class, so it contains methods to be performed on SQLite database such as create, update, delete, select. ये देखो, ये SQL की ये मेथड है, आप लोग ने डेटाबेस मैनेजमेंट में सीखा होगा। क्रिएट द टेबल, अपडेट टेबल, डिलीट टेबल एंड सिलेक्ट टेबल। सुना है आप लोग ने, ये टेबल हम लोग बनाते हैं ना, डेटाबेस इज नथिंग अबाउट द टेबल, ओके, टेबल में हम लोग डेटा रिप्रेजेंट करते हैं। सो सेम क्लास हम लोग यहाँ पे ओके, सो देर आर मेनी मेथड्स इन SQL डेटाबेस क्लास, सम ऑफ देम आर एज फॉलोज। सो ये क्लास में भी बहुत सारे मेथड्स है, जैसे कि ये उन लोग ने बताई है, exe SQL, so it executes the SQL query, not select query. So SQL query ही वो टारगेट करने वाला है, एक्सेप्टिंग मतलब exe मतलब क्या बोलते हैं हम लोग, निग्लेक्ट करके जो SQL सॉरी सिलेक्ट क्वेरी है ना, वो सिलेक्ट क्वेरी निग्लेक्ट करके
जो कुछ भी एसक्यूएल क्वेरी माझ्याकडे आहेत त्या सगळ्या क्वेरी तो रन करणार आहे. देन द नेक्स्ट इज insert. So it simply inserts a record on the database. So while inserting means whenever we call the insert method in SQL, so we insert the data term into the table because SQL is nothing about the tables. जैसे कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हम लोग कोडिंग करते हैं, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में हम लोग टेस्ट केसेस जनरेट करते हैं, वैसे ही डेटाबेस में हम लोग क्या करते हैं, टेबल्स बनाते हैं. ठीक है. सो whenever we are talking about the insert method, so that inserting represents the means we are inserting the data onto the table. ठीक है. उसके बाद ये उसके अभी ये आप लोग थोड़ा देख लो कि इंसर्टिंग कैसे हो रहा है. ठीक है. ओके. देन द नेक्स्ट इज अपडेट. सो इट सिंपली अपडेट द रो. हाँ, टारगेटिंग इंडिविजुअल टेबल, टारगेटिंग इंडिविजुअल कॉलम, it will change the content of that individual means previous content to next content. So that is the updation in any scenario. Okay. उसके बाद है cursor query. So it returns what? It returns a cursor over the result. Okay, so see here, बहुत ही सिंपल एग्जांपल दिया उन लोग ने SQL डेटाबेस का. So क्या करना है मुझे, जो contact.java फाइल है मेरी, ओके, मैं अभी कॉन्टैक्ट फॉर्म बना रहा हूँ. So ऐसा हम लोग अज्यूम कर रहे हैं और contact.java फाइल में ऐसे अपडेट कर रहा हूँ. मीन्स ये पैकेट रहेंगे SQL लाइट ट्यूटोरियल, सॉरी ये पैकेज नेम तो कुछ भी रह सकता है. ठीक है. तो सिंपली आई एम क्रिएटिंग वन क्लास कॉन्टैक्ट नेम, जहाँ पे मैंने अभी आप लोग फ्लो देखते जाओ. मैं ईच एंड आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरी लाइन. सो सी हियर, आईडी किया, नेम, देन फोन नंबर. ऑब्वियसली अभी ये बहुत सी बेसिक चीजें हैं, बहुत ही चाइल्डिश चीजें जो मैं फटाफट बोलने वाला हूँ. ओके. उसके बाद कॉन्टैक्ट फंक्शन. inside the contact function, I am targeting the ID because in my XML file I am creating one field, one text view for enter your name. ठीक है. So enter your name, ये जो text view है उसे मैंने एक ID दी है. So simply I am targeting those ID with the help of this attribute. So ID is equal to ID, name is equal to name and phone number is equal to phone number. That's it. वही चीज में सेम एक वो स्ट्रिंग पास करने के लिए भी सेम चीज कर रहा हूँ. ओके. उसके बाद जो मैंने गेट किया है आईडी वो मैं रिटर्न कर रहा हूँ. ओके. उसके बाद गेट आईडी किया, सेट आईडी किया, उसके बाद गेट नेम के लिए भी सेम मेथड, सेट नेम के लिए भी गेट फोन नंबर एंड सेट फोन नंबर. दैट्स इट. क्लियर. बहुत इजी है. ओके. ये सिंटेक्स हम लोग को मालूम है. ओके. देन द नेक्स्ट इज, नाउ दिस इज माय एक्चुअल फाइल. ओके. सो यहाँ पे देखो, ये इतनी बड़ी फाइल है और यहाँ पे मैंने मेन एक्टिविटी डॉट जावा लिखी है. मेन एक्टिविटी डॉट जावा मतलब यहाँ पे देखो, हाँ, आई एम क्रिएटिंग दोज फील्ड, इंसर्टिंग कॉन्टेक्ट हियर, न्यू कॉन्टेक्ट. अभी मैं यहाँ पे फील्ड पास कर रहा हूँ, नेम एंड कॉन्टेक्ट नंबर. ओके. नेम एंड कॉन्टेक्ट नंबर. क्लियर. सो यहाँ पे ये फाइल अभी हम लोग मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ. सो ये फाइल में क्या किया है, SQLite ओपन हेल्पर is my main class whenever we are dealing with the SQLite database. क्लियर. जैसे जो मतलब जब कभी भी हम लोग जेव्हा आपण SQLite करणार आहोत तेव्हा हा क्लास इम्पॉर्टंट असणार आहे. जसे की आपण कॅमेरासाठी कॅमेरा क्लास होता, ब्लूटूथसाठी एक वेगळे क्लास डायरेक्ट होती. सिमिलरली इथे आपल्याला SQLite ओपन हेल्पर करायचं आहे. सो त्यासाठी आपण एक वेगळा क्लास असाइन केलेला आहे. दॅट्स इट. त्याच्यानंतर व्हर्जन कोणता आहे, नेम का आहे, कॉन्टॅक्ट मॅनेजर असं मी एक बनवलं आहे. जिकडे आयडी केलं, मग मी नेम दिलं आणि फोन नंबर दिला, तो कॉमन एट्रीब्यूट्स. ओके. नाउ सी हियर, हाँ, अभी डेटाबेस हैंडलर जो ऊपर हम लोग ने डिस्कस किया था वो हम लोग एक्टिवेट करने वाले, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्रिएटिंग टेबल. अभी हम लोग टेबल क्रिएट करने वाले यूजिंग SQLite डेटाबेस. सो ये सारी चीजें हम लोग ने ऊपर देखी कि कैसे, मतलब ये इसका मीनिंग क्या है ऊपर देखा. ठीक है. नाउ आई एम क्रिएटिंग द एक्चुअल टेबल. सो स्ट्रिंग क्रिएट कॉन्टैक्ट टेबल. हाँ, मतलब हम लोग ऐसे लिखते थे ना. अभी ये SQLite है, दिस इज नॉट द SQL प्लस जो हम लोग ने यूज किया था. ये SQLite है, थोड़े सिंटैक्स अलग रहेंगे बट द नेचर इज सेम. सो इट्स लाइक क्रिएट टेबल नेम, ऐसे आप लोग ने सुना होगा, वो सिंटैक्स था. सो सिमिलरली यहाँ पे हम लोग यूजिंग दिस सिंटैक्स वी आर क्रिएटिंग न्यू टेबल. सो क्रिएट टेबल, यहाँ पे देखो टेबल कॉन्टेंट्स, हाँ, आईडी दिया उसका, इंटीजर प्राइमरी की, उसके बाद फोन नंबर के लिए टेक्स्ट दिया जो हम लोग ने नीचे एंटर किया एक्चुअली. सो उसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, स्ट्रक्चर बना रहे हैं. क्लियर. थोड़ी बहुत ऑलरेडी आ रही है हम लोग क्या कर रहे हैं. एंड यूजिंग दिस DB आई एम टारगेटिंग द EXEC SQL. हाँ, सो EXEC SQL क्या होता है अभी देखा हम लोग ने. ये देखो, एग्जीक्यूट्स द SQL क्वेरी नॉट सिलेक्ट क्वेरी. ठीक है. सो वो SQL क्वेरी टारगेट करने वाला है, वो SQL क्वेरी रन करने वाला है इन आवर सिंपल लैंग्वेज. दैट्स इट. आई होप यू विल गेट द आइडिया ऑफ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ और हम लोग कैसे ये बता रहे हैं. हाँ,
see the logical flow instead of focusing the each and every line, each and every word. So you will get the definite idea about this.